everyone. I would like to welcome you all on this onward journey of FIITJEE Janakpuri podcast. And before moving further, I would first like to congratulate each and every one of you on behalf of FIITJEE Janakpuri team for securing MVPP scholarships. So before moving further, first I would like to let yourself get acquainted with the audience. So let me have some basic introduction. Raj. Hello everyone, I am Raj Manish. I joined FIITJEE in class 6 Retail Degree program, then class 8 Udya 1-year program, and then class 9 4-year classroom program. I secured rank 3 in MVPP 2021 and qualified for INGSO. Hello, my name is Parth. I joined FIITJEE in class 9 in the 4-year classroom program and I secured rank 10 in MVPP 2021. Hi, I am Ashutosh Mishra. I joined FIITJEE in class 9th in 4-year classroom program and I got 29th rank in MVP 2022. Hi, I'm Girvana Vagisha. I joined FIITJEE in class 9th in 4-year classroom program. I secured rank 39th in MVPP 2022. That was quite impressive, बच्चे. And how do you manage it? क्योंकि daily schools के लिए MVPP exam हो रहा है and उसमें roughly 1.5 to 2 lakhs के near about student रहते हैं. Hardly 150 scholarships they award. तो आप लोगों ने सिर्फ MVP क्वालिफाई नहीं किया बल्कि इतने अच्छे रैंक्स भी लेके आए. यू मेड अस सो मच प्राउड ऑफ इट. सो बच्चे, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? वाज इट अ टफ नट टू क्रैक? It would be a tough nut to crack for those who don't study regularly. अगर आप चाहोगे कि 1 month की प्रिपरेशन में MVP में रैंक 3 आ जाए, रैंक 10 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी इज़ अ मेन थिंग इन दिस, क्योंकि एक दिन में आपको सब कुछ याद नहीं हो सकता. And considering that only 150 students are selected out of these many, it's indeed a very competitive examination. But determination and constant hard work would really help to crack this. How do you manage to prepare for it? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्कूल स्टडीज़ में, क्योंकि स्कूल में MVP की अगर मैं बात करूँ तो MVP में मेंटल एबिलिटी भी आता है which is of 100 questions. तो मेंटल एबिलिटी तो स्कूल में कराई नहीं जाती. तो how do you manage that subject? And मुझे नहीं लगता कि शायद सिर्फ स्कूल स्टडी से MVPP कोई क्वालिफाई कर सकता है. तो how do you prepare for it? FIITJEE helps us a lot in this because there are mental ability experts and faculties who teach us and provide us different questions and materials to study and prepare for it. In FIITJEE, the best part is they provide an archive. In archive, there are like 10-year, 20-year previous question paper of the respective exams. तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और मैथ के लिए अगर अलग से फैकल्टी होती है FIITJEE में, तो वो पढ़ाते हैं और फिर उसका ट्रिक्स भी वो बताते हैं. और जो FIITJEE में जो हमें बुक्स मिलती हैं वो बिल्कुल करिकुलम बेस्ड होती हैं और जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं और काफ़ी सिलेबस ओरिएंटेड होते हैं. So that means the FIITJEE played a pivotal role in your achievements. So if I think about it, तो मतलब FIITJEE में भी आप लोग स्कूल भी जा रहे हो 8 to 9 hours के लिए, then FIITJEE में भी आ रहे हो 4-5 hours के लिए, एंड वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, फिर यहाँ के भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, इनके अकॉर्डिंगली चल रहे हो. तो डोंट यू फील ओवरबर्डन कि हाँ मैं स्कूल का इतना सारा मैनेज करके चलना पड़ रहा है, फिर यहाँ से भी कर रहे हैं? Yes, it's quite overburden, but अगर आप अपने कंफर्ट जोन में तो अचीव नहीं कर पाओगे. कुछ अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप बाकियों से आगे जा पाओगे. And I've learned how to manage FIITJEE and school together because I used to complete all the school homeworks back in school itself and spare rest of the time for FIITJEE curriculum. So that was quite what I could say कि आप लोग के मतलब ये जो अच्छे opinions है that would help the future aspirants also. So अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, constantly पढ़ रहे हो, like you people have said कि consistency is the key to success. तो अगर कोई consistently पढ़ रहा है, डोंट यू फील ओवरबर्डन कि कभी मतलब बोर हो गए हैं या इतनी देर लगातार पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, और यू मे हैव फेल्ट क्योंकि FIITJEE में अपने इंटरनल टेस्ट भी हो रहे हैं, तो कभी ऐसा लो स्कोर्स आने पे डीमोटिवेटेड फील किया है? और अगर फील किया है तो हाउ डू यू मैनेज दैट? लो स्कोर्स को हमेशा एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए और उसमें से देखना चाहिए कि क्यों लो स्कोर्स आए हैं और उससे सीखना चाहिए, बेटर करना चाहिए. और पढ़ते पढ़ते थकना इज अ ह्यूमन नेचर, वो सबके साथ होता है. तो उसमें आप बाकी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे आप
वहाँ आके आपने घूम लिया, क्रिकेट खेल लिया थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर, क्योंकि हमेशा पढ़ना इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा बाहर भी जा सकते हो, तो आप बाकी चीज़ें भी करना चाहिए पढ़ाई के साथ। ठीक है, तो मतलब हाउ डू यू मतलब प्रेफर, क्योंकि एक बार हम पढ़ना शुरू करते हैं, मोबाइल पे देखना शुरू करते हैं, तो मतलब पूरा टाइम कब निकल जाता है वी डोंट गेट टू नो। तो कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए, मतलब कितने टाइम तक हम मोबाइल पे लगना चाहिए या घूमना फिरना करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, और वो ज़रूरी नहीं कि एक साथ बैठ के एक ही बारी में, आप शिफ्ट बना सकते हो। जैसे एक बार आपने बैठा तो आपने से 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे, उसका आपने खुद को ब्रेक दिया, उसका आपने थोड़ा किसी मम्मी से बात कर लिया, या फिर अपने ब्रदर सिस्टर से, या फिर अपने दोस्तों से, या फिर तो आपने फ़ोन यूज़ कर लिया। लेकिन फ़ोन इज़ अ मेजर डिस्ट्रैक्शन, तो आपको थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, बट इट्स ओके। You know, that's good. And if I talk further, Raj, आपने अभी बोला अपने इंट्रो में कि आपने फिर G6 में ज्वाइन किया, then you took a gap of 1 year and then you joined in class 8. तो पहली चीज़, तो पहले सवाल मेरे मन में जो आता है कि इतनी छोटी एज में how did you decide it? मतलब इतनी टेंडर एज में तो लोग सोचते हैं कि नहीं अभी बच्चों के खेलने के दिन, अभी नहीं पढ़ाना, इतना बर्डन नहीं डालना, बट why did you decide it? टू वेट द कॉम्पिटिशन आपको तो पहले से ज्वाइन करना चाहिए फिर जी ज्वाइन करने से मेरे फाउंडेशन बहुत क्लियर हो गए थे। उसके बाद स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प हुए थे, क्योंकि उसके लिए मुझे कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्यूशन जाते तो मैं एज अ फिट जी में यहाँ पे आता था, बस वो स्कूल लेवल नहीं पढ़ाते थे, एडवांस लेवल तक भी पढ़ाते थे, बस स्क्रैच से पढ़ाते थे, बेस से एकदम हाई लेवल तक, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। चलो, दैट्स गुड। तो what advices will you give to all your future aspirants जो भी प्लान कर रहे हैं कि आगे उन्हें MBBP देना है, या 2 to 3 years down the lane उन्हें MBBP देना है, या उनके अपने कोई टारगेट्स हैं, तो what advices would you recommend to those students कि उन्हें क्या करना चाहिए? फिट जी जल्दी ज्वाइन करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप होने लगती हैं, और आपको ये पता चलना लग जाता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में। तो आई एडवाइस ऑल माय जूनियर्स टू जॉइन फिट जी एट द अर्लीस्ट। And one more thing, that quality is always better than quantity. Like, doesn't matter how much you study, but like if you study, let's say for 3 to 4 hours, then you should study it well. I will suggest 2 things. The first one is procrastination नहीं करना चाहिए। जैसे आपको आज एक टॉपिक ख़त्म करना है तो आपको आज ही करना चाहिए, और जैसे सर जो होमवर्क देते हैं वो सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, तो हमें बाकी चीज़ें करनी चाहिए। सेकेंड, जो फिट जी के मटेरियल होते हैं तो उसमें वो बहुत सारी बुक्स को कंबाइन करके होता है। अगर आपने वो मटेरियल कंप्लीट कर लिया तो ऑलरेडी आपने बहुत सारी बुक सॉल्व कर चुके हैं, तो आप बाकी बुक्स पे मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपके दोस्त बोलेंगे कोई और बुक करना है, उसके बाद कोई दूसरा बोले कोई और बुक करना है। इन फिट जी मटेरियल इज़ दी बेस्ट, पहले वो करो तो दूसरी बुक में शिफ्ट करो। और कोई भी ओलंपियाड निकालने के लिए आपको हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। Thank you all for your valuable opinion on this MBBP examination. It was just an eye opener कि how to prepare it. तो आपके इन opinion से, आपके इस preparation journey से बाकी लोग भी inspire होंगे, and they will also prepare thoroughly with dedication for this examination. So thank you everyone for your valuable time and your opinions. I hope you will make great in the future, and I wish you very good luck on behalf of FitG team to for your future endeavors. Thank you. Thank you.